وہ چبلو ہر جگہ زیرو انوینٹ کیا ہے تو یہ نہیں، یہ ایسے ہی ہے کہ آلو ہر سبزی میں ڈالنا شروع کر دو. کیا ہے جی، گھر میں آلو پڑے تھے، وہ خدا کا نام منو، آلو پڑے تھے تو کیا آلو کھانے ہیں؟ کدھر میرے کو آلو نہ پوا لیا جے سر تے. جی سعد بھائی. جی جی، تو یہ ڈیٹا نکل کے آیا ہے. آپ یہ دیکھیں، یہ ٹوٹل ریشو ہے 79% جو ہے میل ہیں، 4% صرف وومین ہے، چلڈرن 17% ہے. تو بھیا 79% میل ہے تو بھیا 32,000 اگر گھس گئے ہوتے تو یہ انٹرنیشنل لیول کا ڈیٹا ہے، اور وہ بھی 110 کنٹریز کا. بہت اچھے. جی آگے چلتے ہیں. اور یہ ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے، مطلب یہ ایک پروپیگنڈا ڈیٹا بھی دیا گیا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں گا ایکچوئل ڈیٹا کیا نکل کے آیا انٹرنیشنل لیول پہ، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا. پروپیگنڈ نمبر ہے کہ ٹوٹل 180 سے 200 انڈین جو ہے ISIS جوائن کیے، ٹھیک ہے، جس میں سے کیرلا کا نمبر آتا ہے کہ انہوں نے 40 لوگوں نے جوائن کیا، 40 لوگوں نے. اور میں بتاؤں گا کہ ایکچوئل کتنے لوگوں نے کیا. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈر لائن کیا ہوا ہے. نمبر آف پروز IS cases in all of India with about 40 of the 180 to 200 cases. ٹھیک ہے، یہ آپ یاد رکھیں. اور پھر یہاں پہ جو NDTV نے بھی یہی پروپوگیٹ کیا کہ 155 ISIS، یہاں پہ نمبر چینج ہوتا جا رہا ہے، ISIS آپریٹو، ٹھیک ہے، ارسٹڈ سو فار. اس کے بعد میں آپ نیچے آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو نمبر ملے گا 160 کنٹری رپورٹ آن ٹیررزم انڈیا کے اندر میں، ٹھیک ہے. تو 160% کا آتا ہے. اب میں آپ کو ایکچوئل نمبر کی طرف لے جاتا ہوں، یہ پروپیگیٹ نمبر سے سیدھا. اب یہ کنٹری رپورٹ آن ٹیررزم کا ہی ڈیٹا ہے 2020 کا. انڈیا، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیر ور 66 نان انڈین اوریجن فائٹرز affiliated with ISIS. نمبر کیوں گھٹ گیا پھر یہاں پہ؟ ٹھیک ہے، ایز آف نومبر. جی تو یہ ایکچوئل ڈیٹا تھا. میں نے ان کو بہت بار بولا تھا کہ آپ ساؤتھ انڈیا سٹوریز کا ری میک بالی ووڈ کے اندر نہ کیا کریں. آپ لوگ پہلے فلاپ انڈسٹری ہے. انہوں نے پھر کیرلا کی سٹوری اٹھا کے بالی ووڈ میں ری میک کر دی. بہت اچھے. یعنی جن کا مسئلہ ہے انہوں نے تو بات نہ کی، وہ تو اشانتی سے چل رہے ہیں. جن کا ایشو ہے، جن کے لیول کا، اور جا کے ادھر سے بات کر رہے ہیں، نارتھ کے اندر جا کے سٹوریز بنا رہے ہیں. تو یہ جو اسٹوپیڈو سین تھا، میرا مطلب ہے اسٹوپڈیٹو سین جو ڈائریکٹر ہے، یہ اسٹوپیڈو ہے. تو اسٹوپیڈو کو چاہیے تھا کہ جناب آپ اسٹوپیڈیٹی نہ کرتے، آپ کیرلا کی سٹوری کو بالی ووڈ میں ری میک نہ کرتے، آپ نے جھگ ماری ہے. یہی کام ہوتا ہے آپ کا. خیر جی تو آگے چلتے ہیں. آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ آپ دیکھیں، یہ پورا ڈیٹا نکل کے آیا موسٹ وانٹیڈ ان انڈیا. تو جو ٹوٹل 60 لوگوں کا نام یہاں پہ ہے، جس میں 26 میل ہیں. ڈیٹا دیکھ لیں آپ، 26. میں اس لیے بولا کہ میں ڈیٹا کو ابھی لے کے آؤں گا، پروپیگنڈا ڈیٹا اور ایکچوئل ڈیٹا. اب یہ ایکچوئل ڈیٹا کی بات ہو رہی ہے. 60 انڈینس ہیں جس میں 26 میل، 13 وومن اور 21 چلڈرن. یہ پورا انڈیا کا ڈیٹا ملا کے. جوائن اسلامک اسٹیٹ، ٹریول ٹو افغانستان، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فرسٹ گروپ ریچ نان، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں آپ کا، جس میں سے 24 لوگ مارے گئے تھے 2016 کے اندر میں، ٹھیک ہے. یعنی 13 عورتیں گئی ہیں، 13 عورتیں. جی ٹھیک ہے، زبردست، ماشاءاللہ، بریلینٹ. اس کے بعد میں یہ پورا ڈیٹا ہے، یہ ہمارے ہی انڈیا کا ہی ڈیٹا ہے. منوہر پریکشا رکشا ادھین ایوم وشلیشن سنستھان سے یہ ڈیٹا ہے. تو انہوں نے خود نکالا ہے یہ ڈیٹا، اور یہ انڈیا سے نکلا ہوا ڈیٹا ہے پورا. یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جو ISIS جوائن کیے تھے، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 1700 فرانس سے ہیں، رشیا سے 2500 ہیں، اور سوویت ریپبلک سے 7000 ہیں 2015 میں. یہ سارا ڈیٹا آپ کو دکھ رہا ہوگا اوور آل پورا. جی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مطلب، جی یہ آپریشن پیگن ہے، اور جو کہ بہت لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا اس کے بارے میں. پیگن جو ہے، جس میں 2 ایجنسیز ہیں، NIA اور IB، ٹھیک ہے. یہ دو ایجنسیاں کنٹرول کرتی ہیں. اگر کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، کوئی ٹیررزم کے طرف جا رہا ہے، تو اس کی انویسٹیگیشن یہی لوگ کرتے ہیں، پھر اس کو جو ہے دبانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے کئی کیسز میں انہوں نے ہیلپ کی تھی، جس میں بتاتے کہ 300 آپریشن پیجن سیوز 350 یوتھ فرام ISIS. تو انہوں نے ISIS سے بچایا 350 کی یوتھ کو انہوں نے بچایا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ایکٹیو ہے وہاں کی ایجنسی جو کیرلا میں ہے.
केरला में जो NIA चल रहा है, ये 2 एजेंसियां काम करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से काम करते हैं, ताकि कोई भी वहाँ का लोग कोई ब्रेन वॉश ना हो और इस तरीके से ना जाए। तो उन्होंने 350 लोग यूथ की उन्होंने ब्रेन वॉश होने से उनको बचाया। उसके बाद में ये आपकी तलमीज अहमद की रिपोर्ट ऑफ द वायर में उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को, जो इंडिया के मुसलमान हैं, उनको बहकाया नहीं जा सकता, उनको ब्रेन वॉश नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जिस तरीके से रहते हैं, डाइवर्सिटी और कम्युनिटी हेट नहीं करते हैं या भाईचारे से रहते हैं, वो सारा सब कुछ इसकी वजह उन्होंने बताई। कल्चर इमेज जो बताया कि किस तरीके के जो इंडिया के मुसलमान आपस में मिलजुल के रहते हैं, किस तरह से प्यार मोहब्बत से रहते हैं, कि उनको जो है इजीली बहकाया नहीं जा सकता। उनसे क्वेश्चन किया गया था कि जिस तरीके से दूसरी जगह पे हो रहा है कि इंडिया में क्यों नहीं होता, तो उसका एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया। उसके बाद में ये आपने पढ़ा ही होगा, दारुल उलूम ने एक फतवा 2009 में लॉन्च किया था इंडिया के, जो भी उसका जो फतवे का नाम था दर-उल अमन, उन्होंने लॉन्च किया था कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहा है जो किसी मासूम का रेप कर दे या किसी को मार दे, किसी नोट को काट दे, पीट दे, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई ज्वाइन करता है तो उसको प्रोहिबिटेड कर दिया गया था। वेयर द मिलिटेंट जिहाद इज प्रोहिबिटेड, यहाँ पे जबरदस्त जबरदस्त। तो ये द प्रिंट ने लॉन्च किया था 2009 का, ये ऑलरेडी डेटा था। और उसके बाद में एक और डेटा निकल के आता है जहाँ पे 70,000 लोगों ने, यहाँ तक कि मक्का मदीना सऊदी ने भी यहाँ पे फतवा दिया था कि इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन कोई ज्वाइन ना करें, इसको प्रोहिबिटेड किया गया। 70,000 इंडियंस मुस्लिम्स को यहाँ से, अलकायदा या तालिबान या किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन, यानी 70,000 उलमा ने, मुफ्तियान ने फतवा दिया था। ये 70,000 मुस्लिम क्लर्क्स इशू फतवा, यानी मुफ्तियान ने फतवा दिया अगेंस्ट ISIS। तो मुसलमान ये कर रहे थे, यानी एक तरफ मुस्लिम कम्युनिटी अपना काम कर रही थी और एक तरफ ये प्रोपेगेंडिस्ट जो हैं, ठीक है, स्टूपिडिटो, ये स्टूपिडिटोस हैं जो हैं, ये इस तरह की मूवीज लेके आ रहे हैं। उससे पहले 2015 का ये दिखा रहे हैं इंडिपेंडेंट का, और 2009 का दारुल उलूम का फतवा मौजूद है दारुल अमन में। थैंक यू, आगे जी। उसके बाद में आपका यहाँ पे देख सकते हैं, ये केरला की मॉस्क में एक शादी हुआ था जिसमें से इन्होंने रिक्वेस्ट की थी। उसमें से एक हिंदू, वहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी बच्ची भली को किसी भी कास्ट से हो, अगर उसकी पैसे नहीं है उसकी शादी के लिए, तो वहाँ की सारी कम्युनिटी मिलके शादियां भी कर देती है। अगर एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है तो सारी कम्युनिटी अपने जेब से पैसा लगा के उसको पढ़ाई करवाती है। आपको एजुकेशन का स्तर, हेल्थ का स्तर केरला में सबसे टॉप पे मिलेगा। उसकी वजह है कि सारी कम्युनिटी मिलकर काम करती है वहाँ पे, कि किसी को जो है एजुकेशन वगैरह, किसी में भी हेल्प चाहिए तो वो खुल के करते हैं। जबरदस्त। अभी कुछ साल पहले मेरे ख्याल से केरला में, ये तमिलनाडु के अंदर बहुत फ्लड आया था, तो वहां पर लोगों के घर, जारी बात है वो उस तरह के इलाके, वहां कच्चे घर बने होते हैं, तो हिंदुओं को, क्रिश्चियंस को मस्जिद के अंदर पनाह दी गई थी, शेल्टर मिला था मसाजिद में। तो केरला के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद वहां पर एक कम्युनिटी सेंटर्स और एक वेलफेयर शेल्टर्स के तौर पर काम आते हैं। जबरदस्त जी, बिल्कुल। ये वहाँ की कुछ तस्वीरें, किस तरीके से कम्युनिटी वहाँ पे जुड़ी थी मस्जिद के अंदर, किस तरीके से दिख रहे हैं, आप गले से मिल रहे हैं, वहीं की ये पिक्चर्स हैं जो शादी के दौरान की। वहाँ पे तकरीबन लड़की को जो है 20 लाख रुपए भी दिए गए, और जेवर जो है मुसलमान कम्युनिटी की तरफ से 10 तोला सोना भी दिया गया था उस हिंदी बच्ची को। एक मिनट माशाल्लाह, कैसर अहमद राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। लिंक मैं पब्लिक कर रहा हूँ एक बार फिर। कैसर भाई अगर ज्वाइन करना चाहें तो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं आपके लिए जगह बना दूंगा, ठीक है। आप खत्म कर लें जरा इत्तेहाद भाई, जरा तेजी से। जी जी जी, मैं बस खत्म हो गया, मैंने खत्म कर दिया। अच्छा, सारा डेटा आपके सामने में, अब आप इस पे क्या देंगे? मैं कहता हूँ इत्तेहाद भाई माशाल्लाह, मैं तो कहता हूँ जबरदस्त तरीके से आपने एक एक माइनर सी डिटेल्स जो हैं वो सामने रखी हैं, और मजा आ गया। कैसर भाई मुझे इशारा देंगे तो मैं इंशाल्लाह पब्लिक में जगह बना देता हूँ, ताकि कोलैटरल डैमेज का फायदा तो हो ना जी, ये ना हो कोलैटरल डैमेज हो जाए और कैसर भाई के मैं हूँ ही नहीं, तो यह मैं आ ही नहीं सकता, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, तो इत्तेहाद भाई बड़ी जबरदस्त ये चीज थी। मैं एक क्लिप इंशाल्लाह करीब बनाने लगा हूँ, हो सकता है आजकल में आ जाए या कुछ, जैसे मुझे टाइम मिलता है। मैं बड़ी सुस्ती मुझसे हो रही है कि मैं 5 पॉइंट्स रखूंगा कि अगर केरला स्टोरी सच है तो फिर ये 5 काम जरूर होने चाहिए, तब हम मानेंगे सच ये 5 काम। और अगर वो 5 काम आपने नहीं किए तो फिर इसका मतलब है कि केरला स्टोरी सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा के तौर पर आपने, या सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्शन कैंपेन के तौर पर आपने। अच्छा,
تو وہ آپ نے صرف اور صرف اس لیے استعمال کیا اس کو، ادروائز نہیں۔ کیسر بھائی دوستوں کہہ رہے ہیں کہ میں ٹرائی کر رہا ہوں، پور انٹرنیٹ کنیکشن ہے، بس پھر جی اور پاکستان میں تو یو پی میں ہوں جی، یو پی تو پھر آپ کو پتا ہے ون آف دا بیسٹ انٹرنیٹ ان دا ورلڈ، جو کنیکشنز ہیں وہ یو پی کے ہیں۔ تو کیسر بھائی آ جائیں آپ بھی یو پی کے اندر، یو پی کے اندر شفٹ ہونے کے لیے صرف آپ کو ایک کام کرنا ہے، 5-6 سٹریمز آپ نے بھگوا لو ٹریپ کے خلاف، 3-4 آپ نے ہندوازم کے اوپر، اور 2-3 آپ نے آر ایس ایس کے خلاف کرنی ہے، آپ کا آٹومیٹکلی پورا بوریا بسترا گول کر کے یو پی کے کسی اپارٹمنٹ کے اندر نکال دیں گے۔ ہاں جی، جیسے امریکہ نے پوری دنیا کے اندر سے ایبٹ آباد کے اندر اسامہ بن لادن کو ایسے پھینکا جیسے پلیوں کیڑا نہیں پائی دا، یعنی کہتے ہیں نا جی کیڑے نکالو، کہتے ہیں کیڑا مل نہیں رہا، کہتے ہیں اپنے پلیوں پا دیو، تو وہ پلیوں اسامہ بن لادن وہ ڈال دیا تھا ادھر اب ایبٹ آباد کے اندر۔ تو ایسے ہی آپ کو وہ پکڑ کے یو پی میں لے آئیں گے، آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن کیا بات ہے جناب، زبردست چلنا شروع ہو جائے گا جیسے میرا چل رہا ہے۔ اتحاد بھائی میں آپ سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بڑی محنت کی آپ نے۔ یہاں میں دوستوں سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دوستو اتحاد رسپانس اس وقت آپ کے سامنے جو چینل آپ کو نظر آ رہا ہے ان کو سبسکرائب کریں، اس طرح کی ہی بڑی یونیک اور بڑی ڈیپ انفارمیشن جو ہے جو عام طور پر سوشل میڈیا میں فلڈ ہونے کی وجہ سے چھپ جاتی ہے، اس کو یہ ڈھونڈ کر باقاعدہ یہ فشنگ کرتے ہیں، نیوز کی بھی باقاعدہ فشنگ ہوتی ہے، سوشل میڈیا پر اتنا فلڈ ہے انفارمیشن کا کہ اس میں سے فشنگ کر کے ہیلدی جینون اتھینٹک نیوز کو نکال کر سامنے رکھنا اور اسلامو فوبس کو ایکسپوز کرنا اٹس سیلف اے اسٹرگل ہے، اور ایک بہت زبردست محنت ہے جس کو اتحاد بھائی کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں، obviously majority of the people these days using social media so it's very easy to understand. Anyways اتحاد بھائی اسی چیز کے ساتھ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اختتامی طور پر اپنی پریزنٹیشن کے، پھر آپ سے اجازت دیں گے، اور کیسر بھائی کی طرف میں دیکھتا ہوں آنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں جی اتحاد بھائی آپ کی طرف، اور پھر کالر شروع ہو رہے ہیں جی دوستوں، ذرا لائن اپ ہو جائیں جی۔ بس یہی جوڑنا چاہوں گا کہ آپ نے پہلا پوائنٹ میری اسٹریم کے لیے پہلے وہ جو پریزنٹیشن پہلے ہی جوڑ دیا کہ کیا ایک انڈیویجول کی وجہ سے پوری قوم کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ 3 انڈیویجول لوگوں کے اوپر میں پورا ایک اسلام کو پھیلا کے ایک مووی آپ نے جنریٹ کی، اور اس کے آپ ریویو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے وہ جھوٹے پروپیگنڈا کو پبلک صحیح مان رہی ہے اور اس طریقے سے پھیلا رہی ہے۔ تو یہ تھا ایک سینسٹیو، آپ کو کیا دماغ میں نہیں آتا ہے کہ اس سینسٹیو مسئلے پہ اگر آپ مووی بنا رہے ہیں تو کس طریقے کا ماحول جو ہے دیش میں بنے گا۔ آلریڈی کشمیری فائل کو لے کے جو ہے مسلم لڑکیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ اوپنلی اعلان ہو رہا ہے کہ ان سے بچے پیدا کرو، ان کے ریپ کرو، ہال کے اندر میں، میرے پاس وہ بھی ویڈیوز ہیں۔ ایک منٹ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ اتحاد بھائی، آپ یوٹیوب جزاک بہت شکریہ اتحاد بھائی، آپ نے جوائن کیا، بہت اچھا لگا، ٹھیک ہے آپ ذرا یوٹیوب پہ نکلیے گا، کیسر بھائی جیسے اتحاد بھائی نکلتے ہیں آپ جوائن کرتے رہے، میں آپ کے لیے جگہ بنا رہا ہوں جب تک آپ آ نہیں جاتے، ٹھیک ہے اتحاد بھائی؟ جی 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 جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ اتحاد بھائی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ نہیں جی دوستو، اتحاد بھائی ہمارے ساتھ تھے، آپ نے ان کی گفتگو سنی، یقیناً ان کی پریزنٹیشن بہت جینونلی فلڈ ود دا انفارمیشن، اور جو اسلامو فوبز ایک ہیٹ سپیچ کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس کو کریٹیکلی انالیسس کیا گیا، نیوٹرل پلیٹ فارمز شیئر کیے گئے، انٹرنیشنل نیوز ہینڈلز جو ہیں ان سے انفارمیشن آپ کے سامنے رکھی گئی۔ آئی ہوپ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کس جگہ پر ہم لوگ کھڑے ہیں۔ کیسر بھائی میں آپ کے لیے جگہ بنا رہا ہوں، اس چکر میں بڑے بڑے پیارے لوگ بھی جو ہیں وہ، مگر آپ سے پیارے نہیں اوبیسلی، آپ بہت پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اسی طرح قائم دائم رکھے، بڑے بڑے پیارے لوگ بھی ہیں، مگر کیا کریں ان پیارے لوگوں سے ہم معذرت چاہ لیتے ہیں۔ یقیناً کیسر بھائی جب آ جائیں گے تو پھر بہت سے لوگ ان سے سوال پوچھنا چاہیں گے۔ کیسر بھائی جگہ بنی ہے 2 4 6 8 9، ہاں جگہ ہے جی، جگہ ہے، کیسر بھائی کا ویٹ ہو رہا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کیسر بھائی بھی آ جائیں، تو کیسر بھائی کی موجودگی میں ذرا میں بھی انسان بن جاؤں گا، اور کیسر بھائی جب ساتھ ہوں گے تو مجھ میں بھی سننے کا، سمجھنے کا اور صبر کا حوصلہ پیدا ہو جائے گا۔ تو میں اس لیے کیسر بھائی کی موجودگی ضروری سمجھتا ہوں اپنے ساتھ، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کیونکہ ان کے آنے سے مریض کے چہرے پہ جو ہنسی آتی ہے پھر سب سمجھتے ہیں کہ عامر حق کا حال اچھا ہے۔ ہیئر کمز دی ون اینڈ اونلی کیسر احمد راجہ صاحب، اہلاً و سہلاً جناب کیسے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے طبیعت ہے آپ کی؟ جی اللہ کا شکر،
अल्हम्दुलिल्लाह। जी अच्छा, जिसने टेंड पे जुगत करनी है, मेरी टेंड मेरी मर्जी, जुगतें बंद। नहीं नहीं कैसर भाई, ये टिंड जिस काम में हुई है वो काम ही इतना आली और अफजल है कि इस पर जुगत नहीं हो सकती अब, क्योंकि ये उमरा के बाद की टिंड है, तो ये तो एक माशाल्लाह। अच्छा जी। जी अच्छा आमिर भाई, सिचुएशन ये है कि मैंने बहुत कोशिश के बाद ज्वाइन किया, इवन लोडिंग में भी बड़ी देर लग रही थी, इंटरनेट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं कैमरा अपना ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि आपकी आवाज़ जो है वो भी चौक होना शुरू हो गई थी। तो सुनाइए कैसी तबीयत है आपकी, और बहुत बहुत अल्लाह का शुक्रिया शुक्र। और बहुत बहुत माजरत उन भाइयों से जिनकी वजह जिनकी आपने बलि दे दी मेरी वजह से इमेजिन दैट। एक ही भाई की बलि हुई है और होप वो समझ जाएंगे इंशाल्लाह। आपको आवाज़ हक स्टाइल के अंदर मैं वेलकम कर रहा हूँ, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। कैसे भाई, ये उन फुलझड़ियों की बारिश में और बौछार में एक खबर सुनने में आ रही है, तो नादरीन जरा कान खुले रखिएगा, तवज्जो रखिएगा स्ट्रीम पर, बड़ी इंपॉर्टेंट एक न्यूज आपको मिलने वाली है। कैसर अहमद राजा साहब की अनकरीब डिबेट होने वाली है इस्लामिक मोरालिटी और एथियस्टिक मोरालिटी पर। जनाब मैं चूंकि अभी डिबेट होने वाली है तो हम अपने डेकोरम को और मॉरल ग्राउंड को उस लेवल पर रखते हैं। जनाब आली जनाब हारिस सुल्तान साहब से, कैसर अहमद राजा साहब, एम आई राइट? डिबेट अभी कितनी मैच्योर हुई है वो मीटिंग, और क्या डिबेट फाइनली होने जा रही है? क्योंकि आपको पता है कई दफा डिबेट पहुंचती है तो ना नौमन तेल तो ना राधा नाचे, तो इस हवाले से हमें क्या खबर आप दे रहे हैं जनाब सुनने वालों को? जी पहले मुझे बताइए, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? बिल्कुल A1 फर्स्ट क्लास आ रही है सर। अच्छा, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा चौक हो रही थी तो इसलिए मैंने कहा शायद मेरी भी ना हो रही। अच्छा, डिबेट जनाब बिल्कुल हो रही है, और बिल्कुल आपने कहा, ठीक किया कि अभी हमने इज़्ज़त एहतराम से ही बात करनी है, इसलिए कि जो फ़रीक़े मुखालिफ हैं जनाब हारिस सुल्तान साहब, वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से कि डिबेट दोबारा ना हो पाए, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जो जब डिबेट का माहौल बनता है तो इंसान इज़्ज़त एहतराम से बात करना शुरू करता है एक दूसरे से, और वो हारिस सुल्तान ने काफ़ी हद तक किया भी। लेकिन उसके साथ साथ दो वीडियो मुझे किसी ने भेजे, एक उर्दू और एक इंग्लिश वाला, कि जिस लेवल पे उस आदमी ने गालियां बकी जो अल्फाज मेरे बारे में कहे, मुझ पे दहशतगर्दी के नहीं, वो वीडियो उसके पड़े हुए हैं उसके उनके चैनल्स पे, और मुझे मैस रिपोर्ट करने का लोगों को लिंक दिया मुझे, और साथ एक लंदन में एक खातून है, आयशा नाम है उनका, कि किसी तरह से मैं, यानी कि दो चीज़ें, कि एक, या मैं ना कर दूं कि मैं इस आदमी से डिबेट नहीं करता, या ये है कि एक तरफ मुझसे डिबेट करने के वो बड़े अच्छे तरीके से वो टेलीग्राम पे आप जनाब से की तरह से वो मौसूफ बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कि मुझे ये पुलिस और इन लीगल केसेस में उलझा के तो किसी तरह से कि कुछ ऐसा हो जाए कि यह डिबेट हो ही ना, या मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दे। तो मेरा सोना ये कोई नई बात थोड़ी है, 1400 साल से हम यही चीज़ें तो देख रहे हैं। पूरी जनाब आप कोशिश कर रहे हैं आखिरी वक्त तक डिबेट होगी, इस दफा डिबेट होगी, एक ही सूरत है कि आप ना आए खुद ना मैं आपको गाली दूंगा, ना मैं आपकी गाली का जवाब दूंगा, ना मैं आपके लिए वो अल्फाज कहूंगा जो आपने अपने वीडियोस में मेरे लिए कहे हैं। इस दफा भागने की कोई नहीं है, वो ये तरीका ना गालिब ने किया था, एक तरफ डिबेट सेट करा था, दूसरी तरफ उसने इस लेवल की गुस्ताखी की, उस लेवल की कि उसके बाद मैंने उससे कहा था कि नहीं यार, इतना ये एक आदमी जिसमें गैरत ही नहीं है इतनी कि उसको पता ही नहीं है कि कैसे बात की जाती है, अंबिया के बारे में वो ऐसी बातें करता है, तो ऐसे आदमी को मैं मुंह नहीं लगाता। और लोगों ने मुझे बाद में कहा कि नहीं आप उसे डिबेट करें, तो मैं यही कहता हूँ यार, वो आप ऐसा करें कि ना कि अपनी माँ बहन के बारे में उसे कहें कि वैसे अल्फाज कहे जो वो कह रहा है, तो उसके बाद अगर आपका जी चाहा उसके साथ स्टेज शेयर करने का तो मैं भी बैठ जाऊंगा, फिर मुझे बताइएगा। तो इसने भी ऐसी हरकत की है, तो अब इसके पास है ऑप्शन दो ही डिबेट ना कराने के। एक तो ये किसी इस लेवल पे जाके कोई ऐसी हरकत कर दे हिंट ना देना कैसे भाई हिंट ना दें, लाइक मेरी रिक्वेस्ट है, ये हिंट ना दें कि वो ये करे तो डिबेट ना हो, क्योंकि उसने वही करना है चले तो मैं उसकी वजह ये बताता हूँ। चले टॉपिक बंद कर देते हैं। हाँ नहीं, मैं असल में चाह ये रहा हूँ कि चूंकि पब्लिक को पता चले, और जिन लोगों को अभी तक नहीं पता डिबेट होने वाली है, तो डिबेट होगी। इधर ये बता दीजिएगा डिबेट हो कहाँ रही है, वो अब्बास हैदर साहब के चैनल पे? जी अब्बास हैदर साहब के चैनल पे संडे को होगी, 21 तारीख को
पता नहीं हारिस सुल्तान ने 27 क्यों लिखा हुआ है। अब ये भी पता नहीं डिबेट से शायद भागने का तरीका है कि नहीं, मुझे समझ नहीं लगी थी कि यार मैं 27 समझा था, तो मैं बता रहा हूँ पब्लिकली, और मुझे पता है कि हारिस सुल्तान तक ये कंटेंट जाएगा, डिबेट 21 को 27 को नहीं है, ये चीज़ हमारी तय हुई है। तो चलें, हुस्न ज़न रखते हुए इंसान कह सकता है कि चलो लिखने में गलती होगी या कुछ और ऐसा हो गया होगा, लेकिन अगर मैं हर एंड को मैं टाइट करना चाहता हूँ कि कल वो ये ना कहे कि नहीं मुझे गलत फहमी हो गई थी, मैं तो इसलिए 21 को नहीं आया, 27 को थी, डिबेट 21 को ही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2 बजे है और अब्बास हैदर साहब के चैनल पे है। जबरदस्त। कैसर भाई 21 और 27 इतना तो मार्जिन दें। वो एक लतीफा भी है ना, आपको अकेले में सुनाऊंगा, 18+ है, वो कहते हैं कैलेंडर ला के टांग दो, ठीक है, तो वो आपको पता ही है, फिर आपने सुना ही तो 21 और 27 भाई आपकी आवाज बहुत चोक कर रही है, मैं अंदाजे से तो कुछ मैं पहले कोई लफ्ज पकड़ के तो मुझे अंदाजा हो गया, लेकिन अब ज्यादा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। चले, इट्स ओके। नाज़रीन जरा मुझे नीचे बता दें, आवाज आप लोगों को तो आ रही है ना? ऑब्वियसली 2 घंटे से आप लोगों को तो आवाज आ ही रही थी। कैसर भाई की तरफ नेट का इशू चल रहा है, ऑब्वियसली मैं यूपी से हूं तो मेरा नेट ठीक चल रहा है। कैसर भाई को होपफुली आवाज आ रही होगी। अगर कैसर भाई को आवाज का इशू हो रहा है तो कोई सवाल पूछना आएगा तो वो बड़ा एक मसला बन जाएगा। खैर, कैसर भाई आपको अब आवाज ठीक आ रही है? जी, आवाज अब आपकी कुछ बेहतर है। थोड़ा लंबा जुमला आपका होता है तो उसमें चूंकि ज्यादा चीजें पिक करने वाली होती हैं तो वो फिर वो जोड़ तोड़ करके समझ जाती है। जो शॉर्ट सेंटेंसेस हैं उसमें थोड़ी सी वो प्रॉब्लम ज्यादा है। बहरहाल मैंने अपना कैमरा ऑफ ही कर दिया मेरे से, यानी कि सिर्फ वेब ब्राउजर पे बंद नहीं किया मैंने, एक्चुअली पीछे से बंद कर दिया, तो अब वो रिसोर्सेज थोड़े कम लेगा तो होपफुली चीजें बेहतर हो जाएंगी। होपफुली इंशाल्लाह चलेगी, इंशाल्लाह चलेगी। मैं एक बात यहाँ करना चाह रहा हूँ, चूंकि वो कहते हैं ना कि ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, और मैं एक शेर हमारे खास तौर पर इन इस्लामोफोब्स के लिए पढ़ा करता हूं कि हमें उनसे है वफा की उम्मीद, हमें उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। अब अफसोस इस चीज का है कि हमारे पास अवेलेबल जो ऑप्शंस हैं ही ये हैं जिनके साथ डिबेट करनी है, यही करता धरता है और यही जनाब बड़े हैं, खड़पैंट चौधरी, तो इन्हीं से बात करनी है। आइमतुल कुफ्फार यही हैं, अब इन्हीं के साथ भिड़ना है। इसलिए मैंने स्टार्ट में कोशिश की कि मैं कोई ऐसा जुमला ना बोलूं जिसको वो बहाना बनाकर ये कह दे चूंकि फला, हालांकि वो खुद खुल के बोल रहा है क्योंकि उसने तो बहाने ढूंढना है, मगर कोई बात नहीं, हमें पता है कितनी दौड़ है, ठीक है जी। एक तो ये चीज। दूसरी चीज ये थी कि चूंकि मेरा खुद एक एक्सपीरियंस रह चुका है इसके साथ, समीर के साथ, ये पहले आके बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं, शर्तें तुम्हारी, फलाना तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये फलाना, और उसके बाद खुद सारी शर्तों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। पीपल आगे आ जाते हैं, जब होश आती है सुबह उठ के तो याद आता है रात को तो अपने से बड़े से पंगा ले लिया, अब तो पड़ेंगी। और जिस तरह एक बंदा था ना, वो कहता है जी आज रात मैंने सोना नहीं है। उसने कहा क्यों? कहता पिछली रात मेरी पठान से लड़ाई हुई थी, आज उसने बंदे लेकर आना है। तो ये एक रात पहले फटा कर लेते हैं, उसकी अगली रात इनको नींद नहीं आती क्योंकि इनको पता है कि अगली रात तो हमारे साथ होनी बुरी है। उसने भी यही हरकत की, अब ये भी वही हरकतें कर रहा है, तो इसलिए इनको करने दें। डिबेट जो है वो इंशाल्लाह होगी, इल्ला ये कि खुद विड्रॉ करेगा, तो ये सारा मामला है। कैसर भाई आपकी इजाजत हो? आमिर भाई, मैं आप इस दफा जो मैंने पिछली दफा भी ये बात मैंने जो हमारा ये जो टेलीग्राम पे एक्सचेंज हो रहा था उस पर मैंने कोई बात करने से पहले ये बात रखी थी कि जितनी भी हमारी, यानी कि कोई प्राइवेट कन्वर्सेशन नहीं है, ये सारी पब्लिक में ये कन्वर्सेशन लेके जाई जा सकती है और टर्म्स कंडीशंस ये वो सारे। तो इस बार भी कोई चीज़ चेंज नहीं हुई है। हमने तो जो नई चीज़ जो इस दफ़ा हुई है, चूंकि उसकी तरफ से एक था कि नहीं मेरे चैनल पे ज़रूरी हो, तो वो उस जिस स्पेस में ये तय हुआ डिबेट, वहाँ पे खुद इसके अपने लोगों ने कहा कि यार इससे ज़्यादा फेयर बात और क्या हो सकती है। वो तो कह रहा है ठीक है मेरे चैनल पे भी नहीं, तुम्हारे पे भी नहीं, तो यानी कि वहाँ पे वो काफ़ी जो है वो यानी गहमा गहमी जो है ना वो ज़्यादा बढ़ गई थी, इतनी बढ़ गई थी कि ये आपस में इनकी जो है वो तू मैं स्टार्ट हो गई थी। सॉरी कैसे भाई, मैं आपको टोक रहा हूँ। मैं ट्विटर वगैरह पे इतना एक्टिव नहीं, आपके ही सलाह पर या आपके ही हुक्म पर मैंने उस ट्विटर को एक्टिव किया और मैं आपकी स्ट्रीम अपना स्पेस में 1-2 बार आया और इरादा रखता हूँ कि अपनी करूंगा जब मौका मिलेगा। तो मुझे पता चला था कि कोई इनकी अपना बड़ा करीबी एक साथी है, उसने कुछ स्पेस रखी और उसमें आपस में ही भिड़ गए और तब जाकर उसको गैरत दिलाई गई, तो तब ये डिबेट हो रही है। ऐसी ही बात है कोई?
मुझे एक साहिबा हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी सिस्टर हैं वो, उन्होंने कहा कि आप स्पेस में आ जाएं, क्योंकि उससे एक रात पहले मैं सारी रात, तकरीबन सारी तो नहीं, आधी रात मैं इनके पास ही था। मैं कोई 1 बजे से लेकर सूर्य निकले से कुछ देर पहले तक मैं इनके साथ ही था। ये सारे एथियस्ट इकट्ठे हुए थे, वो बड़ी वो गहमा गहमी और बड़ा उनको वो, तो उनको वो था कि उस चीज़ का शायद जो है वो हमें अभी सुकून नहीं आया, तो कुछ हमने पता नहीं क्या बदला लेना है क्या। तो मैं वहां पे जाना था सिर्फ एक चीज़ के लिए, 2 चीज़ों के लिए। एक तो ये कि जनाब आपकी जो है वो, सॉरी मैं आपका टाइम तो नहीं ले रहा, मैं सिर्फ वो कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो बात आप दे दें, बात करते हैं, फिर हम आगे क्वेश्चन लेंगे इंशाल्लाह, आप कर लें। तो मैं एक तो उनको ये बताने जा रहा था कि जनाब मैं अपना जो हमारी कल की स्पेस है वो उसका बड़ा हिस्सा मेरे पास रिकॉर्डेड है, तो वो मैं जो आपको मैं अखलाकन इतला दे रहा हूँ कि वो मैं अपने यूट्यूब वगैरह पे मैं चलाने लगा हूँ। उनके तो हाथों के तोते उड़ गए, तो नहीं 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 ये तो नहीं ठीक, आप देखें ना ये तो ऐसे। मैंने कहा पब्लिक, क्योंकि प्राइवेट सर्कल की बात है, प्राइवेट बात हुई है, स्पेस पब्लिक स्पेस थी, ट्विटर पे भी तो इतने लोगों ने सुनी ही है, इसमें इशू क्या है। तो उन्होंने कहा नहीं देखें बड़े उसमें बदतमीज लोग भी थे, बड़ी बदतमीजी भी की गई है, तो वो तो फिर हमारा नाम खराब होगा। मैंने कहा जनाब मैं एक छोटा सा उसमें ऐड कर दूंगा डिस्क्लेमर कि आप हर आदमी ने अपनी जाती हैसियत में बात की, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये स्ट्रॉम पायलट साहब की बात हो रही है बाय द वे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं है उसमें। मैंने कहा जनाब जब आपसे ओनरशिप ली जा रही है कि आप किसी के की जिम्मेदार आप नहीं हैं, ये डिस्क्लेमर में लिखा जो जाएगा, तो अब अगर आप मुझे रोक रहे हैं तो उसका मतलब है कि उनके रवैये की ओनरशिप तो आप ले रहे हैं, फिर आप ओन कर रहे हैं कि उन्होंने जो किया वो ठीक किया। तो मैं कोई आपका दोस्त तो नहीं हूं, आप बदतमीज लोग हैं, आप इस्लाम के खिलाफ बड़ी बदतमीजी करते हैं, बहुत गुस्ताखियां करते हैं, मैं आपका दोस्त नहीं हूं। हमें आप कहते हैं कि हम जाहिल हैं, रिग्रेसिव हैं, इस तरह के हैं, उस तरह के हैं, तो आपका असली चेहरा आना चाहिए। दिस इज माई जॉब। कोई मुझे अच्छी वजह दे कि मैं अगर ना अगर लेके आऊं तो उसकी क्या वजह है। ये जो आप वजह बता रहे हैं ये कोई वजह नहीं है। फिर 1-2 लोगों ने कहा यार हमारे को प्राइवेसी कंसर्न्स है, हमारी फैमिली को नहीं पता था कि हम भी ऐसी स्पेसेस में आए हुए थे, तो वगैरह वगैरह वगैरह। तो चलिए मैंने कहा ठीक है, वही जायज बात है, ठीक है, मैंने नहीं चलाई। तो मैं असल में एक चीज तो ये उनको बताने गया था, और दूसरे ये कहने गया था कि मैं एक से ज्यादा मरतबा आपकी स्पेसेस में आके अकेला तनहा, आप सारा पूरे का पूरा जथा एक तरफ होते हैं, मैं एक तरफ, तो मैंने तो कभी माइंड नहीं किया। तो इस दफा मैं आपको दावत देने आया हूँ कि आप में से कोई एथियस्ट हम मुसलमानों की स्पेस में आए और कुछ घंटे एथिज्म का दिफा करे। मैं सिर्फ ये आपसे कहने आया। वो वहां से फिर वो भी एक लंबी कहानी है, खैर वो कभी मैं आपको सुनाऊंगा कि वहां पे उसके बाद क्या क्या हुआ वहां पे लेकिन वहां पे हारिस साहब आए हुए थे, ये मुझे उन्होंने खातून ने पहले बताया, वो आए हुए हैं। तो हारिस सुल्तान वही बंदा बड़े अरसे बाद मेरे हाथ आया है, ये आया वो आया है वगैरह, वो जो रुआती बाजारीपन जितना भी है। तो मैंने कहा जनाब हारिस साहब, मैंने आपको वीडियो आप पे बनाया, आपके चैलेंज का जवाब दिया, आपको टैग किया, आपके सारे चैनल टैग किए, मैंने फिर शॉर्ट वीडियो बनाया उसमें आपको टैग किया, फिर लोगों ने आपको ईमेल भेजा मेरे जो कम्युनिटी पोस्ट थे उसके स्क्रीनशॉट्स ले लेके, तो बंदा तो कब से आपके हाथ आने को तैयार था, आप ही गायब हुए हुए थे कहीं, एब्सेंट विदाउट लीव। तो ये क्या हुआ। तो खैर वो बड़ी लंबी बात ये वो करके तो आखिरकार स्ट्रॉम पायलट ने बात कही कि हारिस वो बात तो ठीक कह रहे हैं कि वो ठीक है, उनका भी चैनल नहीं आपका भी नहीं, तो इसमें मसला क्या है। तो फिर वहां पे इतनी मजबूरी हो चुकी थी कि हाँ चलें ठीक है कर लेते हैं, अब्बास हैदर के कर लेते हैं। वहां से ये नहीं हमारा भी दोबारा स्टार्ट हो गया। ठीक है तो वो बाकी जो आप कह रहे हैं इनकी ये आदतें और बाद में ये शर्तें हमारी तय हो चुकी हैं, फॉर्मेट हमारा तय हो चुका है। कल इंशाल्लाह यूट्यूब पे मेरा वीडियो आ जाएगा जिसमें वो सारी मेरे पब्लिक को दिखानी है कि ये है हमारा फॉर्मेट। मैंने अब वो गालिब कमाल वाली हरकत नहीं करने देनी कि जिससे पूरी डिबेट में उस आदमी ने डिबेट की नहीं, बस अपनी स्लाइडें पढ़ता रहा, ना मेरी किसी ना मुझे वो करने दिया, क्या उसे कहते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन करने दिया, सवाल जवाब नहीं करने दिए, कुछ भी नहीं। और हारिस सुल्तान को मैंने एक दफा कहा, दो मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ कि हारिस सुल्तान ने लार्जली अच्छी जो मॉडरेटरशिप मॉडरेशन अच्छी की थी, नो डाउट हारिस ने मॉडरेशन लेकिन थी। हाँ जी लार्जली अच्छी थी, लेकिन एक दफा मैंने बीच में कहा था कि हारिस यू हैव टू पुट योर फुट डाउन, ये तरीका ठीक नहीं है, फॉर्मेट को हम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं आमने सामने जिसे कहते हैं ना क्रॉस एग्जामिनेशन पे मेरी भी करो, मैं आपकी भी करना चाहता हूँ। तो हारिस ने उस पर ये बात कही थी कि अब ऑडियंस पे छोड़ देते हैं कि वो इस चीज को फिर वो खुद फैसला कर लेंगे। तो इस दफा मैं इसलिए जितने भी हैं ये जो फॉर्मेट है कि किस स्टेज पे किसने क्या कहना है, किसकी बारी है, ये सारी की सारी बातें मैंने पब्लिक पे पहले रख देनी है। ये इस दफा वो बात नहीं होगी जो पहले हो चुकी है। जबरदस्त जबरदस्त। नहीं बिल्कुल, मैं खुद इस चीज का कायल हूं जी कि टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो डिबेट से पहले पब्लिक होनी चाहिए, ताकि डिबेट के दिन पब्लिक को भी पता हो कि कौन कौन सा रूल तोड़ रहा है, तो उनको असबर होनी चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। तो डिबेट के अंदर फिर आप जब उस वक्त बात करते हैं ना कि ये शर्त तोड़ी जा रही है, ये चीज है, और उस वक्त बताते हैं कि ये शर्त थी ऐसे थी, तो वो चीज फिर टाइम कंज्यूमिंग होती है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आप कह रहे हैं, तो पब्लिक को ये इंशाल्लाह कल कैसर भाई के चैनल के ऊपर
टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो पब्लिक हो जाएंगी, लेट्स सी वो क्या है इंशाल्लाह, और बड़ी एक हेल्दी और इंफॉर्मेटिव डिबेट हमें देखने को इंशाल्लाह मिलेगी अल्लाह के हुक्म से। कैसर भाई आपकी इजाजत हो तो मैं चाहता हूँ आपकी मौजूदगी में ही क्वेश्चन आंसर सेशन जो है उसका बाकायदा आगाज कर दिया जाए। 2 घंटे से जो है वो हम चले गए हैं 2 घंटे में, और अभी तक पब्लिक जो है उसके साथ इंगेज नहीं हुए, तो आपकी मौजूदगी में मैं चाहता हूँ ताकि लोग आपसे बात कर सकें। ठीक है सर भाई? शुरू जनाब, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं बस थोड़ी देर के लिए, मेरा इंटरनेट बड़े बुरे तरीके से डिटेरियोरेट हो रहा है, तो मैं जितनी देर मैं रुक सका मैं जरूर रुकूंगा, लेकिन मैं आपको हेड्स अप दे रहा हूँ जस्ट इन केस। इंशाल्लाह आपके यूपी में तो ये प्रॉब्लम नहीं होते, यहाँ पे थोड़ा सा ये दिक्कत बनी हुई है आजकल। असल में यूपी को हम ऐसे करते हैं कि पटवारियों से कहकर खाते खतौनियों में इसकी फर्दें यूपी के नाम की बनवा लेते हैं, जमान पार्क की। ठीक है, तो कम से कम नेट ना जाया करे। दूसरा